یہ داستان ہے 18 سال کی سخت تکلیف، بیماری، تنہائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک عظیم الشان پیغمبر گزرے ہیں۔ حضرت ایوب اللہ کے انتہائی پسندیدہ نبیوں میں سے تھے۔ آپ اللہ کی عبادت میں اس طرح مشغول رہتے کہ رات دن کا فرق نہ رہتا۔ اللہ نے آپ کو دنیاوی دولت سے بھی نوازا تھا۔ آپ کے پاس زمینوں کے زمینیں، مال اولاد، آپ کی اولاد بھی بہت تھی، گھر میں چین و سکون تھا۔ آپ کی بیوی حضرت رحیمہ بھی انتہائی نیک، پارسا اور وفادار تھا۔ لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کی آزمائش اس لیے کرتا ہے کہ ان کا درجہ اور بلند ہو۔ ایوب کی آزمائش کا آغاز ہوا۔ ایک دن جب آپ اپنی عبادت میں مصروف تھے تو اللہ نے آپ کو آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ یہ آزمائش اتنی سخت تھی کہ کسی انسان کے لیے برداشت کرنا عام طور پر ممکن نہیں۔ لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اللہ نے آپ کے جسم پر ایک سخت بیماری مسلط کر دی۔ آپ کے پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے، آپ کی جلد خراب ہو گئی، آپ کے جسم سے بدبو آنے لگی، لوگ آپ سے دور بھاگنے لگے، شہر والوں نے آپ کو شہر سے نکال دیا۔ وہ دن رات آپ کی خدمت میں مشغول رہتی، آپ کو کھانا کھلاتی، آپ کے زخم ڈھوتی، آپ کی ہمت بڑھتی۔ وہ ہر روز صبح اٹھ کر کام پر چلی جاتی اور شام کو کچھ لے کر آتی، کبھی انہیں روٹی ملتی، کبھی کچھ اور۔ وہ ایوب علیہ السلام سے محبت کرتی تھی، ان کی وفاداری ان کے ایمان کا حصہ تھی۔ لیکن ایک دن ایوب، کب تک؟ ہم 18 سال سے اس حالت میں ہیں، کب اللہ ہم پر رحم کرے گا؟ شیطان نے تمہیں بہکا دیا ہے۔ آپ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی تعریف کرتے اور اللہ سے دعا مانگتے۔ آپ نے کبھی اللہ سے سوال نہیں کیا کہ مجھے یہ مصیبت کیوں دی۔ آپ نے کبھی اللہ کی مرضی پر شک نہیں کیا۔ آپ نے صرف اللہ پر بھروسہ رکھا۔ ایوب علیہ السلام نے ایسا کیا تو وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس پانی سے نہاؤ اور پیو۔ ان کے کھیت پھر سے ہرے بھارے ہو گئے، ان کے جانور پھر سے لوٹ آئے، ان کی اولاد پھر سے زندہ ہو گئے۔ ایوب کی زندگی میں پھر سے خوشی آئی، لیکن ان کی ثبات کا یہ سبق آج تک لوگ یاد کرتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا 18 سال کا صبر اور اللہ کا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے نبی بھیجے، انہی نبیوں میں سے ایک حضرت ایوب علیہ السلام بھی تھے۔ وہ اللہ کے بہت پسندیدہ بندے تھے۔ اللہ نے انہیں بہت سی نعمتیں دی تھیں، لیکن اللہ نے انہیں آزمایا بھی۔ یہ داستان ہے 18 سال کی تکلیف اور صبر کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی خوشحالی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ نے انہیں بہت کچھ دیا تھا۔ ان کے پاس بہت ساری زمینیں تھیں، بہت سارے جانور تھے اور بہت ساری دولت تھی۔ ان کے بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ ان کا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی بیوی حضرت رحم بہت نیک اور وفادار تھی۔ وہ ہر کام میں ان کا ساتھ دیتی تھی۔ لوگ دور دور سے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ وہ ان سے علم سیکھتے تھے اور دعائیں لیتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ایک مثال تھی کہ انسان دولت میں رہ کر بھی اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ آزمائش کا آغاز۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے۔ یہ آزمائش ان کا درجہ بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش شروع ہوئی۔ پہلے ان کے مال میں کمی آئی، ان کے کھیت ختم ہو گئے، ان کے جانور مر گئے، ان کی دولت ختم ہو گئی۔ پھر ان کی اولاد پر مصیبت آئی، ایک ایک کر کے ان کے سب بچے مر گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، لیکن انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے کہا،
अल्लाह ने दिया और अल्लाह ने लिया, वही बेहतरीन मालिक है। बीमारी का आना, लेकिन आजमाइश खत्म नहीं हुई थी। अल्लाह ने उनके जिस्म पर एक बीमारी भेज दी। उनके पूरे जिस्म में कीड़े पड़ गए। उनकी जल्द खराब हो गई। उनके जिस्म से बदबू आने लगी। लोग उनसे दूर भागने लगे। शहर वालों ने उन्हें शहर से निकाल दिया। उन्हें शहर से बाहर कूड़े के ढेर पर रहना पड़ा। कोई उनके पास नहीं आता था। कोई उनकी मदद नहीं करता था। वो बिल्कुल अकेले रह गए थे। लेकिन उनकी बीवी हजरत रहम ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वो दिन रात उनकी खिदमत करती थी। वो उन्हें खाना खिलाती थी, उनके जख्म धोती थी और उनकी हिम्मत बंधाती थी। बीमारी बहुत सख्त थी। घर में कुछ भी नहीं बचा था। बीवी लोगों के घरों में काम करती थी, मजदूरी करती थी और जो कुछ मिलता था हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के लिए ले आती थी। 18 साल का सब्र। 18 साल गुजर गए। 18 साल बहुत लंबा वक्त होता है। इस पूरे अरसे में हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की बीमारी में कोई कमी नहीं आई। उनके जिस्म से बदबू आती थी, कीड़े उनके जिस्म को खा रहे थे। बीवी ने कभी शिकायत नहीं की। वो हर रोज सुबह उठकर काम पर जाती थी और शाम को कुछ ना कुछ लेकर आती थी। कभी उन्हें रोटी मिलती थी, कभी कुछ और, लेकिन वो कभी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को अकेला नहीं छोड़ती थी। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की इबादत में कोई कमी नहीं आई। वो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते थे, अल्लाह की तारीफ करते थे। उन्होंने कभी अल्लाह से सवाल नहीं किया कि मुझे ये मुसीबत क्यों दी। उन्होंने कभी अल्लाह की मर्जी पर शक नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखा, अल्लाह से दुआ। एक दिन शहर वालों ने बीवी से कहा कि तुम इस आदमी को छोड़ दो, ये मर गया है, ये अब जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन वो खातून उनकी बात नहीं मानी। वो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो काम पर गईं तो उन्हें कुछ नहीं मिला। वो थक कर घर आए और हजरत अयूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अयूब कब तक? हम 18 साल से इस हालत में हैं। कब अल्लाह हम पर रहम करेगा? हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, शैतान ने तुम्हें बहका दिया है। तुम अल्लाह की रहमत से मायूस हो गई हो। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे इस तकलीफ से निजात दे, मैं थक गया हूं। अल्लाह का मौजिज़ा। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ की तो अल्लाह ने उनकी सुन ली। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपना पांव जमीन पर मारो। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया तो वहां से पानी का चश्मा फूट निकला। अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस पानी से नहाओ और पियो। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने जब ऐसा किया तो अल्लाह ने उनकी हर बीमारी दूर कर दी। उनका जिस्म पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गया। उनकी बीवी भी सेहतमंद हो गई। अल्लाह ने उनकी औलाद को भी जिंदा कर दी। उनके जिस्म से बदबू आती थी, कीड़े उनके जिस्म को खा रहे थे। बीवी ने कभी शिकायत नहीं की। वो हर रोज सुबह उठकर काम पर जाती थी और शाम को कुछ ना कुछ लेकर आती थी। कभी उन्हें रोटी मिलती थी, कभी कुछ और, लेकिन वो कभी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को अकेला नहीं छोड़ती थी। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की इबादत में कोई कमी नहीं आई। वो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते थे, अल्लाह की तारीफ करते थे। उन्होंने कभी अल्लाह से सवाल नहीं किया कि मुझे ये मुसीबत क्यों दी। उन्होंने कभी अल्लाह की मर्जी पर शक नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखा, अल्लाह से दुआ। एक दिन शहर वालों ने बीवी से कहा कि तुम इस आदमी को छोड़ दो, ये मर गया है, ये अब जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन वो खातून उनकी बात नहीं मानी। वो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो काम पर गईं तो उन्हें कुछ नहीं मिला। वो थक कर घर आए और हजरत अयूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अयूब कब तक? हम 18 साल से इस हालत में हैं। कब अल्लाह हम पर रहम करेगा? हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो बहुत दुख हुआ।
उन्होंने कहा, शैतान ने तुम्हें बहका दिया है, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस हो गई हो। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे इस तकलीफ से निजात दे, मैं थक गया हूं। अल्लाह का मौजिज़ा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ की तो अल्लाह ने उनकी सुन ली। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपना पांव जमीन पर मारो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया तो वहां से पानी का चश्मा फूट निकला। अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस पानी से नहाओ और पियो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब ऐसा किया तो अल्लाह ने उनकी हर बीमारी दूर कर दी। उनका जिस्म पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गया। उनकी बीवी भी सेहतमंद हो गईं। अल्लाह ने उनकी औलाद को भी जिंदा कर दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश खत्म हुई। अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भी बदला दिया। खुशहाली की वापसी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनकी बीवी ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने उन्हें इतनी दौलत दी कि पहले से भी ज्यादा। उनके खेत फिर से हरे भरे हो गए। उनके जानवर फिर से लूट आए। उनकी औलाद फिर से जिंदा हो गई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में फिर से खुशी आई। सबक। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया हमें सबक सिखाता है कि मुसीबतों में सब्र करना चाहिए। अल्लाह अपने बंदों को आजमाइश में डालकर उनके दर्जे बुलंद करता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 18 साल की लंबी मुसीबतों में कभी अल्लाह का शुक्र नहीं छोड़ा। उनकी बीवी की वफादारी भी हमें सिखाती है कि बीवी शौहर की मुसीबत में साथ दे। अल्लाह ने इन दोनों को दुनिया में भी बदला दिया और आखिरत में भी उनके लिए जन्नत है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया हमें यह भी सिखाता है कि कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत बहुत करीब है, बस थोड़ा सब्र करना है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 18 साल सब्र किया और अल्लाह ने उनकी हर तकलीफ दूर कर दी। दुआ। अल्लाह हमें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह हमें सब्र करने की ताकत दे और अपनी रहमत से नवाजे। आमीन। ये थी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दास्तान जो सब्र और शुक्र की बेहतरीन मिसाल है।